Hello everyone. So today we will talk about expansionary monetary policy. See, you might have come across different types of terminologies in exam, which says that dovish monetary policy, cheap money policy, easy monetary policy, etc. etc. So expansionary, cheap, dovish, easy, loose monetary policy, these are all one and the same thing. So if UPSC tries to change the terminology or phrase the question in a different manner, then you should be able to deal with it. ये सब एक ही चीज है. Cheap money policy हो या dovish stance हो, कोई सा भी हो, ये सब expansionary monetary policy है. So what is expansionary monetary policy? What are the goals? Why do we need expansionary monetary policy? It is to fuel economic growth. It is to stimulate the consumer spending or expenditure or the business activities, or you can say investment expenditure. तो expansionary monetary policy कब करी जाती है? When economy is in a slowdown, a recession, a depression, या फिर आप इकोनॉमी को चाहते हो ये और तेजी से ग्रो करे, देन यू गो इनटू एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी मोड. अब मैं आपको इसका डिटेल में जाके समझाता हूं. दैट इज जब स्लो डाउन हो इकोनॉमी में, व्हाट इज अ स्लो डाउन इन एसेंस? स्लो डाउन इज व्हेन रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ जीडीपी डिक्लाइंस. दैट इज पहले मेरा जीडीपी इट वाज ग्रोइंग एट 7%, नाउ इट इज ग्रोइंग एट 5%. ग्रो अभी भी कर रहा है लेकिन स्पीड धीरे है. आपको एक बेसिक डिफरेंस बता देता हूं बिटवीन रिसेशन, between slowdown. Think about it that you are moving in a car. When you are in 5th gear, then you are moving at a very high speed. So let us say that ultimately Indian economy, when it grows at around 8% or 9%, जो हमारा mid 2000 में जो हमारा rate of growth था, तो think about it as 5%, as the 5th gear. ठीक है. देन अब आपको लगता है कि थोड़ा गियर चेंज कर लेते हैं. नाउ यू आर रनिंग इन द थर्ड गियर. थर्ड गियर मतलब आपका 4-5%. तो व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग लाइक 4 to 5%, देन वी विल से दैट इकोनॉमी इज ग्रोइंग. इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है लेकिन इट इज इन थर्ड गियर. तो यहां पे हम आ गए हैं अभी स्लो डाउन में. अब now what will be a recession? Recession is technically speaking negative growth for 2 consecutive quarters. दो मतलब लगातार 6 महीने तक आपका जो जीडीपी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आपकी नेशनल इनकम कॉन्ट्रैक्ट कर रही है. सो इन स्लो डाउन यू वर मूविंग फॉरवर्ड, यू वर मूविंग इन द थर्ड गियर. गाड़ी की स्पीड स्लो हो गई थी, बट नाउ इन रिसेशन आपने रिवर्स गियर डाल दिया है. नाउ यू आर इन रिवर्स गियर. अब गाड़ी पीछे जा रही है, आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है. आपकी नेशनल इनकम फॉर एग्जांपल पहले 100 रुपीज थी, अब 95 हुई, अगले क्वार्टर में 90 हो गई. तो 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स जब आपकी ग्रोथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, देन यू आर टेक्निकली इन अ रिसेशन, जो कि अभी इंडिया में हुआ कोविड के कारण. तो जब स्लो डाउन हो या रिसेशन हो, व्हाट इज द एम ऑफ आरबीआई? What is the aim of government at that moment? At that point in time, we want to stimulate demand in economy. हमें डिमांड इंक्रीज करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट करना है. तो वो कैसे करेंगे हम? Here we will reduce the repo rate. What is repo rate? Repo rate is the rate at which banks borrow from RBI. जिस रेट पे बैंक्स लोन लेते हैं आरबीआई से, उसको हम रिड्यूस कर देंगे. लेट अस से आरबीआई रेपो रेट वाज 8%, नाउ आरबीआई रेपो रेट इज एट 4%. तो क्या हो गया? जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है, जो कॉस्ट ऑफ लोन है फॉर द बैंक्स लाइक एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनके लिए जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग है फ्रॉम आरबीआई वो हाफ हो गई. इट हैज बीन रिड्यूस टू half, that is 50% decline कर गई इनकी cost of borrowing. Now what will they do in an ideal scenario? They will pass on the benefit to the market participant.
मतलब जो भी हाउस होल्ड हैं, जो भी आपके बिजनेस हैं, उनके लिए भी लोन की दरें, लोन की रेट इट विल बी रिड्यूस्ड बाय 50%, 50 नहीं तो 30, 20 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अल्टीमेटली माई होम लोन, my loan for laptop, my loan for car, etc., it will be cheaper now. So what will it do? I will be motivated to take a home loan, to go for consumption expenditure. Now similarly, the businesses like Ambani's, like Adani's, or for that matter Bajaj, etc., or MSME for that matter, they will be motivated to take loan. Why? Because at this point in time the cost of borrowing has been reduced. तो आपने रेपो कम करा, इससे लोग लोन लेंगे। सिमिलरली आपने मनी सप्लाई को बढ़ा दिया, नाउ यू हैव इंक्रीज्ड मनी सप्लाई। नाउ थिंक अबाउट इट, क्या करा था हमने कल? मनी मल्टीप्लायर। तो यहां पे जब मनी सप्लाई बढ़ जाएगी तो मोर मनी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी। व्हेन मोर मनी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी देन द इंटरेस्ट रेट शुड आइडियली डिक्लाइन। जब ज्यादा लिक्विडिटी होती है, एक्सेस लिक्विडिटी होती है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थ्योरेटिकली स्पीकिंग या बुकिश लैंग्वेज में बोलूं तो वो कम होनी चाहिए। तो नाउ दोनों तरफ से हम चाह रहे हैं कि मनी सप्लाई भी बढ़े और इकोनॉमी के इंटरेस्ट रेट भी डाउन आए। सो आईआर इंटरेस्ट रेट विल बी लो। अब इकोनॉमी में बैंक के पास खूब सारी फंडिंग भी है, मनी सप्लाई भी है बैंक के पास, और बैंक को पीछे से पैसा भी सस्ता आ रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बैंकों ने घटा दिया। नाउ लोन अर्लियर, अ होम लोन वॉज coming for, let us say hypothetically 12%. Now the home loan is available for 6%. So people will take home loan, corporates will take loan. So it will lead to high demand in economy. क्योंकि जब मैं लैपटॉप खरीदूंगा, जब मैं घर खरीदूंगा, जब मैं गाड़ी खरीदूंगा, तो ऑटोमेटिकली देयर विल बी इंक्रीज इन डिमांड इन द इकोनॉमी। जब डिमांड बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, तो ऑटोमेटिकली द बिजनेसेस दे विल गेट द इंडिकेशन दैट अब इकोनॉमी में डिमांड आ रही है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें इन्वेस्ट करना है ताकि हम इस डिमांड को टैकल कर सकें। दैट इज अर्लियर वी वर एबल टू प्रोड्यूस 1000 यूनिट, नाउ वी शुड इंक्रीज द कैपेसिटी, वी शुड इन्वेस्ट इन प्लांट, टूल, मशीनरी, जिसे कि हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो नाउ देयर विल बी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, देयर विल बी कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड देयर विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। इसके बाद ग्रोथ आ जाएगी। अब आपको इसके ग्राफ के थ्रू समझाता हूं। ये जो पीरियड है व्हेन रेपो रेट इज हाई 6.5, दिस इज द पीरियड ऑफ, ये जो पीरियड है ये पीरियड है उर्जित पटेल का। उर्जित पटेल जो है वो थोड़े, जिसे हम बोलते हैं हॉकिश। हॉकिश मतलब जो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, या जो लोग इन्फ्लेशन की थ्रेट को हमेशा देखते हैं कि यार प्राइसेस विल इंक्रीज, तो वो थोड़े हॉकिश स्टांस वाले थे। अब आगे जाके समझाऊंगा मैं कॉन्ट्रैक्शनरी, नेक्स्ट स्लाइड में है वो। तो उर्जित पटेल इंक्रीज्ड और केप्ट द रेपो रेट हाई। फिर उसके बाद आए आपके दिसंबर में उर्जित पटेल ने रिजाइन करा। फिर उसके बाद 2018 के बाद आपके आए जैन में कौन? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ने सीधा बार बार रेट को रिड्यूस करा। ये देखो ग्राफ 6.25, 6, 5.75। देन उसके बाद कोरोना में सीधा आपका डाउन चला गया रेपो रेट। तो दैट इज हाउ इंडिया or monetary policy in India, it went into expansionary or dovish type of monetary policy. So that is how expansionary monetary policy is applied. That is how expansionary monetary policy is carried out. अब आगे चलते हैं। अब ये थोड़ा देख लेते हैं हम इकोनॉमिक सर्वे को। इकोनॉमिक सर्वे 2021. See, March 27, 2020, policy repo rate has been reduced by 115 basis point. ठीक है, 4% पे आ गया। यहां पे रेपो रेट ये देख लो डाउन आ रहा है, दैट इज रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को अभी हम नहीं देखेंगे, ठीक है। देन कैश रिजर्व रेशियो ये भी डाउन आ गया। कैश रिजर्व रेशियो क्या है ये भी आज डिस्कस हो जाएगा, ठीक है। इट इज द अमाउंट ऑफ, इट इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स विच हैव टू केप्ट विद आरबीआई इन कैश फॉर्म, ठीक है। देन यहाँ पे एनडीटीएल है, एनडीटीएल क्या है तब समझाऊंगा मैं जब हम सीआरआर और एसएलआर को करेंगे। तो हियर अगेन एसएलआर इज द परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विच द बैंक्स हैव टू कीप विद देमसेल्व्स बट इन द फॉर्म स्पेसिफाइड बाय आरबीआई, ठीक है। तो यहाँ पे एसएलआर भी डाउन आ रहा है। ये चीजें अलग हैं एमएसएफ वगैरह, लेकिन एमएसएफ भी रिड्यूस कराता है। एमएसएफ भी एक बोरोइंग विंडो है।
तो हेयर वी आर इन एक्सपेंशनरी मोड। अब आपको बीपीएस जो है बेसिस पॉइंट समझाता हूं, सी एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे सिंप्लीफाई करके। वी हैव अ 1 रुपी एंड 1 रुपी वी हैव 100 पैसा। Similarly, we have 1 percentage point. Within 1 percentage point, we have 100 basis point. So, 1 basis point is 100th part of 1 percentage point. अगर 1% के 100 भाग बना दूंगा, उसका जो एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, that is known as BPS. So here essentially 115 basis point means 1.15 percentage point. ठीक है, तो हेयर इकोनॉमिक सर्विसेज दैट अल्टीमेटली वी वेंट टू इनटू एक्सपेंशनरी मोड। व्हाई? बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन, बिकॉज ऑफ कोविड-19 के कारण। अब सीआरआर का आपको इफेक्ट भी दिखा देता हूं। ठीक, रिडक्शन हुआ सीआरआर के अंदर, राइट। तो रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक फ्रॉम 4%, पहले था हम रख रहे थे 4% पे, 4% मुझे वट एवर आई गेट एज डिपॉजिट आई विल कीप 4%, मतलब 100 रुपए मिले तो 4 रुपए विल कैश फॉर्म विद आरबीआई। बट हेयर इट हैज बीन रिड्यूस टू 3%, नाउ अर्लियर 4, नाउ 3%। अब 1% कम करा, लेकिन आप देखो इससे कितनी लिक्विडिटी, हाउ मनी सप्लाई इज इंक्रीज। रिमेंबर यस्टरडे वी डिस्कस मनी मल्टीप्लायर, व्हेन द रिजर्व रेशियो दे विल बी रिड्यूस्ड, द मनी सप्लाई विल बी इंक्रीज। सो यहां पे रिड्यूस हुआ है हमारा सीआरआर, तो 1.37 लाख करोड़ रुपीस, 1.37 लाख करोड़ रुपीस was injected into the economy, was released into the economy. So that is how expansionary monetary policy is carried out. Next आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे अगेन। एमपीसी डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेट अनचेंज्ड इन अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। अब ये यहां पे याद रखना, आपको कल मैंने बताया था, हिंट दिया था कि व्हाई इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग देयर वर सम वॉइसेस, देयर वर कंसर्न्स विद इन द सर्कल ऑफ पॉलिसी मेकर्स एंड former RBI governors that for a developing country like India, inflation targeting is a bit premature. That it, we should have your inflation and economic growth on equal footing. But in India, what we have done, price stability is the primary goal. That is, inflation control is the primary goal while keeping growth in mind. मतलब automatically यहाँ पे hint है कि growth पहले इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, जब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगी फिर वी हैव टू मूव ऑन टुवर्ड्स स्टिमुलेटिंग ग्रोथ। सो हियर दैट इज द प्रॉब्लम कि जैसे ही टॉलरेंस जोन के थोड़ा सा बाहर गया आरबीआई के, इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन सीपीआई एक्सेलरेटेड टू 6.93%, सिर्फ 0.93% टॉलरेंस जोन से बाहर गई। इन्होंने आरबीआई ने दे केप्ट द रेपो रेट ऑन होल्ड, दैट इज वी वोंट रिड्यूस द रेपो रेट। नाउ थिंक अबाउट इट, यहां पे पिछले 4 साइकिल से और अभी जो रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी रेपो रेट रिड्यूस नहीं करा है, सेकंड वेव भी आ गई है। लेकिन सिंस इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग, सिंस ग्लोबल प्राइसेस ऑफ कमोडिटी आर इंक्रीजिंग, सिंस क्रूड ऑयल प्राइस इज इंक्रीजिंग, ग्लोबल कमोडिटी प्राइस आर इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स देयर आर चांसेस ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया गोइंग अप, क्योंकि वी आर अ नेट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल, we also import commodities। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इससे हमारा सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन, रिमेंबर कोर इन्फ्लेशन, हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन इज व्हेन वी एक्सक्लूड द वॉलेटाइल items such as food and fuel, but headline inflation is when we include every commodity and or goods and services, that is food and fuel are included in headline inflation, and we are basing our policy on headline CPI, राइट। तो हेडलाइन के कारण अब बाहर से जो आ रही है इसको हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन भी बोलते हैं, क्योंकि जब बाहर से गुड्स हमने इंपोर्ट करे उनका जब प्राइस बढ़ा हुआ आया तो ऑटोमेटिकली इंडिया में इन्फ्लेशन हो जाएगी उसकी वजह से। लेकिन इस इन्फ्लेशन को हम बोलते हैं इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। अब इसकी वजह से रेट नहीं घटा सकते, रेपो रेट कैन नॉट बी रिड्यूस बिकॉज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई इज कीपिंग इन्फ्लेशन विद इन 2 to 6% and ideally 4% of CPI. Then
मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की February 5 को जो मीटिंग हुई थी उसमें सीपीआई प्रोजेक्शन, ये जो है थोड़ी सी कमेंट्री जो आती है, जो स्पीच होती है आरबीआई की, अगर टाइम ना मिले तो बाद में इवन आई थिंक एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूशन दे प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ समरी, तो वो समरी एक बार हमें देख लेनी चाहिए। अगर आप स्पीच देख सको तो वो ठीक रहता है। टोटल इट इज मेनली अ 10-15 मिनट्स स्पीच। इट इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब फ्रीली। एनीवे, सीपीआई प्रोजेक्शन इज रिवाइज टू 5.2%। मतलब आप आरबीआई को लग रहा है कि एज वी गो फॉरवर्ड इन्फ्लेशन विल बी डाउन, क्योंकि जब इकोनॉमी अनलॉक होगी तो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट, मतलब जो गुजरात से दिल्ली में सामान आना है या बैंगलोर से दिल्ली में सामान आना है या तमिलनाडु से दिल्ली में सामान आना है, वो अब डिसरप्ट नहीं होगी सप्लाई चेन, सामान आ पाएगा। क्योंकि अगर स्कार्सिटी होगी तो देयर विल बी इंक्रीज इन प्राइसेस। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि सीपीआई प्रोजेक्शन कह रहे हैं कि 5.2, यहाँ पे कितना जा रहा है, अराउंड 7%। तो हियर इट विल बी विद इन द टॉलरेंस जोन ऑफ आरबीआई, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ आरबीआई। MPC kept the repo rate unchanged and maintain accommodative stance। अब ये stance आपको मैं समझा देता हूं। Accommodative stance is mainly that RBI is open to the idea of reducing rates. That is, if economy needs help, if economy needs stimulation, then RBI is open to reducing rate. That is accommodative. That is, we will accommodate growth. We will be in expansionary mode. We will be in cheap money policy, loose money policy mode. Is what is accommodative stance। एक होता है neutral stance। Neutral stance मतलब रेट कैन गो ईदर वे, रेट मैं बढ़ा भी सकता हूं, रेट मैं घटा भी सकता हूं। यहां पे accommodative stance का मतलब क्या है कि रेट मैं बढ़ाऊंगा नहीं, बट आई कैन डिक्रीज द रेट। दैट इज accommodative। रेट बढ़ाना इज आउट ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि स्टांस accommodative है, स्टांस एक्सपेंशनरी है। न्यूट्रल में क्या है, जैसा डेटा आएगा, दैट इज इफ इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग देन आई विल एक्ट। इन्फ्लेशन जब इंक्रीज करेगी तो क्या करेंगे आरबीआई विल इंक्रीज रेपो, आरबीआई विल रिड्यूस मनी सप्लाई। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन इज गोइंग डाउन और देयर इज स्लो डाउन इन इकोनॉमी, देन आरबीआई विल रिड्यूस रेपो रेट, आरबीआई विल रिड्यूस रेपो रेट एंड आरबीआई विल इंक्रीज मनी सप्लाई। तो किसी भी तरफ जा सकती है मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज द न्यूट्रल स्टांस। एक जो तीसरा स्टांस है जिसकी बात हुई थी पहले उर्जित पटेल के टाइम में, दैट वाज कैलिब्रेटेड टाइटनिंग। कैलिब्रेटेड टाइटनिंग, यहां पे कीवर्ड क्या है, टाइटनिंग। टाइटनिंग मतलब टाइट मनी पॉलिसी। एक्सपेंशनरी कौन सी होती है, लूज मनी पॉलिसी। तो हियर टाइटनिंग मींस दैट अ रेट कट is out of the question. I will not be reducing rate as we go forward. तो रेट कट तो नहीं मिलेगा। लेकिन यह दूसरा वर्ड है वो है कैलिब्रेटेड। कैलिब्रेटेड मतलब कि इफ सिचुएशन डिमांड्स एंड आई माइट इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। मतलब अगर इन्फ्लेशन बढ़ती है, आई मीन वेट एंड वॉच मोड। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टांस। आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं प्रीवियस ईयर का 2014। इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड द इकोनॉमी इन एन इकोनॉमी इट विल डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन, इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज द टोटल सेविंग। अब एक एक को देखते हैं। ठीक है, डिक्रीज द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। नाउ एक सिंपल सा क्वेश्चन आंसर करो आप लोग, दैट अर्लियर the loan rates of different banks, they were at 15%. Now you are getting loan at 5% or let us say 4%. तो अब क्या करोगे आप लोग, you will take loan and you will spend money because it is a cheap money policy. ठीक है, तो when interest rate is decreased, so how come there will be a decrease in the consumption expenditure? There will be an increase in the consumption expenditure. सिमिलरली इंक्रीज इन टैक्स कलेक्शन। ये आपको समझाता हूं कैसे, इसको जब पेपर सॉल्व कर रहे हो तो इसको बात के लिए रख लो आप। ठीक है, इसको हमने काटा मार दिया, इसको हमने देख लिया कि पहले सारे देख लेता हूं फिर आऊंगा इसके पास। इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अर्लियर लोन वॉज 15%, नाउ द लोन इज 5%. सो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर द कॉर्पोरेट्स? द 1/3 कॉस्ट हो गई है बोरोइंग की। सो व्हाट दे विल डू, दे विल क्रिएट कैपेसिटी।
बिकॉज राइट नाउ बोरोइंग इज चीप, तो वो प्लांट टूल मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे, एंड व्हेन यू इन्वेस्ट इन प्लांट टूल मशीनरी दैट इज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, सो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज, so this statement says increase in the investment expenditure, so yes, this can be right. Increase the total saving. अब now खुद सोचो आप कि आर SBI और HDFC दे आर गिविंग यू लोन एट 5% और आपका वहां पे सेविंग्स अकाउंट है, आपकी वहां पे FD है, तो वो आपको कितना रेट देंगे जब वो आगे लोन दे रहे हैं एट 5%? व्हाट will be the interest rate on your savings account or your FD account? On your savings account you might get 1%, on your FD you might get around 3% और 3.5 पर मे बी 2.5%, क्योंकि इतना मार्जिन तो रखेगा बैंक अपने पास, इससे ज़्यादा ही रखते हैं, वो तो है मैं सिंप्लीफाई करके एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम सेविंग्स विल नॉट मेक सेंस, बिकॉज मुझे बैंक में पैसा रख के कुछ मिल नहीं रहा है, तो देयर विल बी लेस सेविंग इन इकोनॉमी. बैंक्स आर नॉट मोटिवेटिंग मी टू सेव. तो अब आगे हम टैक्स कलेक्शन में. नाउ थिंक अबाउट इट, इकोनॉमी इज इन प्रॉब्लम, लाइक कोविड का टाइम है, इकोनॉमी प्रॉब्लम में है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने, सो दैट देयर इज मॉनिटरी स्टिमुलस. अब हो सकता है कि गवर्नमेंट भी स्टिमुलेट कर रही हो इकोनॉमी को, तो जब गवर्नमेंट स्टिमुलेट करती है, गवर्नमेंट के पास अपने टूल्स होते हैं, फिस्कल पॉलिसी, व्हेन गवर्नमेंट डील्स इन फिस्कल पॉलिसी, उनके पास क्या क्या टूल होते हैं आपके, डिसइन्वेस्टमेंट, टैक्सेशन, बोरोइंग, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा. तो हो सकता है कि जब कोविड है तो गवर्नमेंट अपने टैक्स रेट्स को कम कर दे, या कुछ चीजों में बिल्कुल ही टैक्स हटा दे कि हाँ भाई ये टैक्स फ्री हो गई है फिलहाल के लिए. तो यहाँ पे देयर इज नो 1-to-1 काइंड ऑफ रिलेशन, जरूरी नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए बिल्कुल पक्का कि यहाँ ये तो होगा, प्रैक्टिकली ये हो सकता है, बट यहाँ पे क्या है, टैक्स कलेक्शन माइट इंक्रीज लेटर ऑन व्हेन इकोनॉमी इज इन ग्रोथ. इकोनॉमी हो सकता है कि अभी स्लो डाउन में है इसलिए इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन, तो ये अभी गलत है, बिकॉज मुझे एक ही चूज करना है. सो हियर आई विल गो विद सी, दैट इज इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है एग्जामिनेशन के अंदर, सीधा जाके मार नहीं देना है, क्योंकि कई बार होता है कि एक आधा जो है थोड़ा सा ज्यादा सटल टाइप ऑफ स्टेटमेंट होता है. एनीवेज आगे चलते हैं. So the answer is C, that is increase in the investment expenditure in the economy. Sorry about this. आगे चलते हैं. तो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी की बात करते हैं, हॉकिश मॉनिटरी पॉलिसी की बात करते हैं, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी की बात करते हैं. कॉन्ट्रैक्शनरी, हॉकिश, ठीक है, और इसको हम डियर मनी पॉलिसी भी बोलते हैं. जैसे वहां चीप मनी पॉलिसी, यहाँ डियर. डियर मतलब ये नहीं कि पैसा प्यारा हो गया, डियर मतलब पैसा महंगा हो गया. एनीवेज कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनिटरी पॉलिसी, व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. व्हाई इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन क्या है बेसिकली? सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल. तो ये बेसिकली कब होता है? व्हेन डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, और थ्रू द मॉनिटरी पॉलिसी हम यहां क्या करने जा रहे हैं, हम सप्लाई साइड को तो डील नहीं कर सकते, क्योंकि मॉनिटरी पॉलिसी इज मेनली डिमांड मैनेजमेंट. डिमांड को बढ़ा सकते हैं, डिमांड को घटा सकते हैं. तो हियर आई विल ट्राई टू रिड्यूस डिमांड. इफ आई एम RBI and there is inflation and I am following contractionary monetary policy, my aim is to reduce demand in the economy. So utilize when government wants to control inflation. See, inflation है, तो what I can do? I will increase the repo rate. Increase the repo rate से क्या होगा? When repo rate, hypothetically let us say the repo rate is at 5%, now RBI increases it to 10%. Now bank's cost of borrowing इंक्रीजेस, वो डबल हो गई, तो वो क्या करेंगे, अपने लोन के रेट को डबल कर देंगे. लोन्स विल बिकम एक्सपेंसिव, दैट इज व्हाई इट इज डियर मनी पॉलिसी. तो जब लोन्स एक्सपेंसिव हो गए, देन यू एंड मी वी विल नॉट borrow from the bank and we will reduce our consumption expenditure. Similarly, the corporates, they will not borrow from the bank and they will reduce their investment expenditure. वो इस समय इन्वेस्ट नहीं करेंगे बिकॉज पीछे से कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है. सिमिलरली मनी सप्लाई विल बी रिड्यूस्ड. आरबीआई जो है मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा. रिमेंबर हाई पावर मनी, ठीक है, हाई पावर मनी को रिड्यूस कर सकते हैं आरबीआई, या और भी बहुत सारे टूल्स होते हैं मनी सप्लाई को रिड्यूस करने के लिए, उसकी हम आगे जाके बात करेंगे, जैसे ओपन मार्केट ऑपरेशन.
तो हियर आरबीआई ने रिड्यूस कर दी मनी सप्लाई, सो लेस मनी इज अवेलेबल in the economy, and repo rate, that is cost of borrowing for the banks, it has been increased. So interest rate in economy, IR, interest rate in economy, it will be increased, because of which demand will decline. And when demand decline, पहले क्या था, demand यहाँ थी and supply यहाँ थी, so अब demand को हम नीचे ले आए हैं, अब there will be equilibrium in the economy, so now inflation will decline. That is how a contractionary monetary policy work. Goal is to decrease the money supply in the economy. It can be achieved by raising interest rate, वो हमने देख लिया. Selling government security, that is open market operation. Open market operation में RBI they buy or sell government security. तो यहाँ पे sell करी जब RBI ने government security, it will reduce money supply in the economy. वो कैसे होती है वो जब मैं open market operation डिस्कस करूंगा तो in depth बताऊंगा. तो सेलिंग गवर्नमेंट बॉन्ड एंड इंक्रीजिंग द रिजर्व रिक्वायरमेंट, मतलब CRR, SLR, इनको मैंने बढ़ा दिया. रिमेंबर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो जो हमने कल करा था, RDR एंड इट्स लिंक विथ मनी मल्टीप्लायर एंड मनी सप्लाई. तो रिजर्व रिक्वायरमेंट को जब मैं बढ़ा दूंगा तो मनी सप्लाई नीचे आ जाएगी. दैट इज हाउ इट वर्क्स. आरबीआई ने उर्जित पटेल के अंदर जो है पॉलिसी रेट्स बढ़ाए थे, वो अभी पीछे डिस्कस करा. ठीक, ये उर्जित पटेल का टाइम है, यहाँ पे 2018 चल रहा है, 2017 के एंड से 2018. तो उर्जित पटेल के टाइम में इन्फ्लेशन, ही वाज मेनली हॉकिश काइंड ऑफ, हॉकिश इन ओरिएंटेशन. हॉकिश कौन होते हैं, जो सोचते हैं कि यार इन्फ्लेशन से खतरा है, इन्फ्लेशन माइट इंक्रीज, इट विल बिकम अनकंट्रोलेबल. तो दीज पीपल दे ट्राई टू सप्रेस इन्फ्लेशन. ठीक है, तो हेयर क्या हुआ, रेट बढ़ गया, रेपो रेट बढ़ा देगा 6.5%, और करंटली क्या है अभी इंडियन इकोनॉमी का रेपो रेट 4%. तो सी द स्टॉक डिफरेंस. एनीवेज आगे चलते हैं. एक ये केस स्टडी लेते हैं, बुकिश काइंड ऑफ केस स्टडी है, बेसिकली टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्ट्रैक्शन इन मॉनेटरी पॉलिसी कैन रियली वर्क. यूएस इकोनॉमी लेट 1970s, यहाँ पे था राइजिंग इन्फ्लेशन, इंक्रीज करी थी इन्फ्लेशन. यहाँ पे जो फेड के प्रेसिडेंट थे वो थे पॉल वॉकर, फेड के चेयरमैन, फेडरल रिजर्व यूएसए, जिसकी हमने कल बात करी थी, सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इज फेडरल रिजर्व. तो इन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ा के, जो इनका रेट है, जैसे हमारे यहाँ रेपो रेट है, वहां फेड फंड्स रेट होता है, इन्होंने इंक्रीज कर दिया टू 9%, बट इन्फ्लेशन कम नहीं हुई. तो ही बाय 1981 ही इंक्रीज द रेपो रेट, दैट इज फेड फंड्स रेट टू 20%. तो जब 20% पे बैंकों को पैसा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली इंडियन इकोनॉमी या आपके यूएसए की इकोनॉमी के तो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 30% तक चला जाएगा लोन का रेट, क्योंकि बैंक को भी अपना मार्जिन रखना है. तो इन्फ्लेशन तब 13.5% पे थी, उसके बाद सीधा क्रैश कर गई इन्फ्लेशन क्रैश टू 3.2% बाई 1983, मिड 1983, क्योंकि टोटल स्पेंडिंग वॉज ड्रॉप ड्रामेटिकली. मैनी कंपनीज उन्होंने अपनी कॉस्ट को कट करा. क्यों, क्योंकि पीछे से जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ गई है तो ऑटोमेटिकली हाउस होल्ड जो है लोन नहीं लेंगे, कॉर्पोरेट जो है लोन नहीं लेंगे, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विल गो डाउन, investment expenditure will go down, because of which when demand goes down then inflation will go down. That is how things work in bookish manner. Here things have worked in the real economy. Anyways आगे चलते हैं. अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम, अब टूल्स के अंदर जा रहे हैं हम. टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, एक होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स, जिनको जनरल और इनडायरेक्ट भी बोला जाता है. ये जानबूझ के मैंने यहां डाला है बिकॉज एट टाइम्स यूपीएससी क्या है, क्वांटिटेटिव नहीं पूछेगा, वो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर जनरल और इनडायरेक्ट टूल्स. और ये है क्वालिटेटिव, इसमें है सिलेक्टिव और डायरेक्ट टूल्स. अब आई थिंक यू वोंट बी एबल टू से दिस बिकॉज मुझे ही प्रॉब्लम हो रहा है. एनीवेज मैं आपको समझा देता हूं, और ये जो है मैं आपको समझाता हूँ, और नेक्स्ट जब क्लास होगी तो उसमें इसको थोड़ा दोबारा एक बार स्लाइड ठीक करके मैं दोबारा समझा दूंगा. एनीवेज क्वांटिटेटिव टूल्स वो होते हैं विच डील विद द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी और टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी. मतलब इफ आई एम यूजिंग द क्वांटिटेटिव टूल्स, इधर जैसे मान लो अभी इकोनॉमी में है 1000 करोड़ रुपीस, तो अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है
तो आई विल रिड्यूस द मनी सप्लाई, मैं शायद इसे 500 करोड़ पे ले आऊं। इफ देयर इज स्लो डाउन और रिसेशन इन इकोनॉमी, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आई माइट इंक्रीज द मनी सप्लाई टू 2000 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पे जो मेरे टूल्स रहते हैं, दैट इज हेयर आई एम ट्राइंग टू मैनिपुलेट द टोटल लेवल ऑफ क्रेडिट इन इकोनॉमी और टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी सप्लाई इन इकोनॉमी। और मेरे जो टूल्स रहेंगे वो यहाँ पे रहेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। तो यहाँ तो मैं इसको जो है मनी सप्लाई के थ्रू टैकल करूंगा, या फिर मैं इसे इंटरेस्ट रेट के थ्रू टैकल करूंगा, जिससे क्या होगा कि क्रेडिट क्रिएशन, रिमेंबर इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड क्रेडिट क्रिएशन। तो व्हेन इंटरेस्ट रेट विल गो डाउन, बैंक्स विल लेंड मोर, देयर विल बी मोर क्रेडिट क्रिएशन इन इकोनॉमी। टोटल वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट, जो लोन है उसे हम क्रेडिट बोलते हैं, तो टोटल अमाउंट ऑफ लेंडिंग विल इंक्रीज इन इकोनॉमी। अब इसके अलावा जो दूसरे टूल होते हैं वो होते हैं क्वालिटेटिव, दैट इज सिलेक्टिव और डायरेक्ट। ठीक है, ये दे आर एम्ड एट टैकलिंग स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ लोन्स इन द इकोनॉमी। तो यहां पे जैसे अगर 1000 करोड़ है इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई, here we won't be touching the total level of money supply. Here we will try to push money into certain sectors which are desirable, for example agriculture, solar power, etc. Or we might try to discourage consumption in certain sectors which are undesirable at this point in time. ठीक है, तो that is how qualitative monetary policy works. That is 1000 करोड़ है तो हो सकता है मैं यहाँ पे लिमिट लगा दूं कि भाई एग्री में आपने 500 देना है, एजुकेशन में आपने 100 देना है, देन सोलर में आपने 100 देना है। मैंने टोटल को स्टैटिक रखा है। हेयर आई हैव राइट टू पुश मनी इनटू सर्टेन सेक्टर्स, दैट इज व्हाट इज क्वालिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी, दैट इज सिलेक्टिव यूज। हम कुछ सेक्टर्स को यहां पे टारगेट कर रहे हैं, कुछ सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को टारगेट कर रहे हैं। और इसके जो टूल्स होते हैं वो है मार्जिन मनी, कंज्यूमर क्रेडिट रेगुलेशन, क्रेडिट रैशनिंग, डायरेक्ट एक्शन, मोरल सुएशन एक्सेट्रा। तो ये सब अभी वन बाय वन हम इन डेप्थ करेंगे, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। एनीवेज आगे चलते हैं। ओके, सो सबसे पहला है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये क्या है हमारा क्वांटिटेटिव टूल। You have the PDF with you. In the PDF, I have mentioned what are the quantitative tools and what are the qualitative tools. So refer to your notes as well. If you find any difficulty, then let me know. So open market operations site refer to sale and purchase of securities in the market by central bank. RBI क्या है? इसके अंदर it will try to sell or it will try to purchase government securities from the market. And the aim is to regulate money supply. अब उसको देख लेते हैं कैसे। मान लो इन्फ्लेशन है, that is inflation. So what is inflation? Inflation is mainly when demand is more and supply is less. So demand ज़्यादा है, supply कम है। तो what is my aim here as RBI? I will try to reduce demand in economy. तो आई विल ट्राई टू रिड्यूस मनी सप्लाई, क्योंकि जब मनी सप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली बैंकों को अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाना पड़ेगा एंड देयर विल बी लेस अवेलेबिलिटी ऑफ फंडिंग इन द इकोनॉमी। तो लेस अवेलेबिलिटी ऑफ लोन्स इन इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट्स इन इकोनॉमी, तो ऑटोमेटिकली डिमांड डाउन जाएगा। सो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाउ इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। व्हेन आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, देन सेंट्रल बैंक जो है सेल कर रहा है बॉन्ड, इसको बैंक्स को। यहां पे सिंप्लीफाई करने के लिए बैंक्स हैं, आप इसे मार्केट समझ लो। ठीक है, तो यहां पे मैंने मान लो 1000 करोड़ के बॉन्ड सेल कर दिए, तो बॉन्ड विल गो टू द मार्केट और द बैंक्स, बट क्योंकि बॉन्ड खरीदे तो पैसा देना पड़ेगा, तो हियर मनी विल बी गोइंग टू आरबीआई। सो आरबीआई विल बी एब्जॉर्बिंग मनी फ्रॉम द इकोनॉमी, bonds will be going to the market and money will be flowing towards the central bank. So when less money is available, मान लो कि मेरे पास पहले 1000 करोड़ था और मैं SBI हूं and I had 1000 करोड़ रुपीस। ठीक है, अब I was having around 10% of profitability. See, आज SBI के भी इन्वेस्टर होते हैं, SBI के भी अपने एक्सपेंसेस होते हैं, so they have to have
प्रॉफिटेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक है सो दे वोंट गो फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, दे गो फॉर प्रॉफिट्स, ठीक है, इफ दे कैन। तो अल्टीमेटली हियर माय प्रॉफिट वाज 10%, अर्लियर आई वाज having around 1000 crore rupees as funding. Now suddenly there is an open market operation and I have bought bonds for 500 crore rupees. 500 करोड़ के मैंने बॉन्ड खरीद लिए क्योंकि रिस्क लेस इन्वेस्टमेंट है और फिक्स इंटरेस्ट रेट आएगा। अब मेरे पास कम फंडिंग है। अब जब मेरे पास कम फंडिंग है मुझे प्रॉफिट तो बनाना है, तो व्हाट आई विल डू, अर्लियर आई वाज गिविंग लोन एट 10%, नाउ आई विल इंक्रीज द लोन रेट टू 15%, क्योंकि प्रॉफिट तो बनाना है, क्योंकि इन्वेस्टर बोलेगा कि ये तो लॉस मेकिंग बैंक है तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है, तो आई हैव टू कीप एवरीबडी हैप्पी, तो आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट। तो जब इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो लो मनी सप्लाई, हाई इंटरेस्ट रेट, तो लोग क्या करेंगे, इंडिविजुअल लाइक यू एंड मी, वी विल नॉट बोरो, कॉर्पोरेट्स they will not borrow, so automatically demand will decline. That is how a contractionary monetary policy works, ठीक है। इन्फ्लेशन के टाइम में जब हमें कंट्रोल करना होता है डिमांड को। अब जब स्लो डाउन है, when there is slow down in economy, स्लो डाउन का मतलब क्या है, there is decline। स्लो डाउन का मतलब क्या है, there is decline in economic activity, there is decline in demand in the economy, so RBI here will buy government security। अब देखते हैं इसको डायग्राम के थ्रू, ये है, here we are trying to control a recession, तो सेंट्रल बैंक will buy बॉन्ड जा रहा है मार्केट या बैंक से RBI की तरफ, और RBI ने मान लो 1000 करोड़ के बॉन्ड खरीदे हैं तो 1000 करोड़ रिलीज करेगा टूवर्ड्स द मार्केट। So now RBI buys government security, money supply will increase and interest rate will go down. Same example, SBI was able to generate 10% profit and I had funding of 500 crore. मैं SBI हूं, मेरे पास 500 करोड़ की फंडिंग थी और मैं 10% प्रॉफिट जनरेट कर रहा था, मेरा 10% से काम चल जाता है। तो नाउ RBI हैज परचेज द बॉन्ड एंड दे हैव गिवन मी मोर मनी। अब मेरे पास पैसा बढ़ गया, इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ गई है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, बैंक्स क्या करेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, अब पहले 500 करोड़ से 10% कमाना था, अब 1000 करोड़ से 10% कमाना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली हियर व्हाट विल हैपन, अगर मैं SBI हूं, पहले मेरे पास 500 करोड़ थे, अब 1000 करोड़ है, 10% मेरा प्रॉफिट का टारगेट है, चलो 12 भी कमा लूं तो भी मुझे लोन रेट कम कर सकता हूं बिकॉज आई हैव मोर मनी, ठीक है। सो नाउ हियर व्हाट विल हैपन, इकोनॉमी विल सी इंक्रीज इन मनी सप्लाई एंड डिक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। That is high money supply in economy and low interest rate in economy। अब क्या होगा, आपके जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, that is individual, आपके मेरे जैसे, और कंपनी फॉर एग्जांपल MSMEs और the big corporates, they will take loan because low interest rates in economy। So RBI will buy government security, it will release money supply into the economy and the demand will increase, क्योंकि households वो consumption expenditure करेंगे क्योंकि लोन के रेट कम हो गए and growth will increase। That is how monetary policy is conducted through open market operation। अब चलते हैं आगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन में एक आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिसेंटली इन न्यूज, ऑपरेशन ट्विस्ट। तो इसको थोड़ा इन डेप्थ करते हैं, फिर ग्राफ की मदद भी लेंगे समझने के लिए कि RBI launched the US style operation twist so that they can reduce the long term interest rates in Indian economy। So why US style? Because US conducted first time the operation twist, पहले 1961 में, फिर 2011 में, ठीक है। तो it was US which for the first time conducted operation twist। अब ये ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट क्या है वो समझते हैं अभी। US ने किस लिए करा था, टू रिड्यूस देयर लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट्स। फर्स्ट टाइम RBI ने पहली बार करा है ऐसा अनकन्वेंशनल पॉलिसी मेजर। कन्वेंशनल पॉलिसी मेजर कौन से होते हैं, जैसे आपके CRR, SLR, रेपो रेट वगैरह। अनकन्वेंशनल होता है जब ये वाले टूल्स नहीं चलते, प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाती है, तो आउट ऑफ द रूल बुक जाके, आउट ऑफ द जो है नॉर्मल टूल्स जाके चीजें करी जाती है, और ऑपरेशन ट्विस्ट ऐसा ही एक टूल है, इसीलिए इसे अनकन्वेंशनल बोला जाता है। अनकन्वेंशनल पहली बार करा है RBI ने, ये याद रखना, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है, दैट फर्स्ट टाइम RBI हैज कंडक्टेड समथिंग सच एज ऑपरेशन ट्विस्ट। क्यों करा गया, आपको थोड़ा ग्राफ के थ्रू समझा देता हूं। ये है हमारा लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट,
ये है हमारे शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट। इनका जो डिफरेंशियल है ना, ये प्रॉब्लमेटिक है आरबीआई के लिए। आरबीआई डज नॉट वांट अ ह्यूज स्प्रेड, ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट। तो इसको हमें डिफरेंस को कम करना है, इसे हम बोलते हैं फ्लैटनिंग द यील्ड कर्व। ये यील्ड है, ये जो यील्ड कर्व है दोनों के, इनको हमें थोड़ा, जैसे यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, हमें इनको, इनके डिस्टेंस को रिड्यूस करना है, इनके डिस्टेंस को रिड्यूस करना है। सो दैट इज नोन एज फ्लैटनिंग द यील्ड कर्व इन इकोनॉमिक्स, अगर टेक्निकल आप जो है टेक्निकली बात करूं तो। एनीवेज, इसमें होता क्या है वो आपको समझाता हूं। आरबीआई विल, अब फिर इस यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा हूं, देन वी विल सी हाउ इट एक्चुअली वर्क्स। ठीक है, आरबीआई विल सेल द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी, आरबीआई शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी को बेचेगा, एंड यूजेस द मनी एंड बाय द लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब मैंने मान लो 10,000 करोड़ की शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी बेची, उससे जो पैसा आया उसी पैसे से मैंने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी खरीद ली। आई रिमेंबर somebody asked question in the app that why would people go for buying bond if they are going to suffer from capital loss? Then I answered that ultimately you have to refer to Operation Twist and the bond buying program by Australian Central Bank. तो इसीलिए कि आरबीआई खड़े खड़े देखेगा नहीं अगर यील्ड मिसबिहेव कर रही है। तो अगर यील्ड बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करेगी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा मिस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको नुकसान होगा। लोग बॉन्ड को खरीदना छोड़ देंगे, उसमें इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे। क्योंकि मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा बॉन्ड में? ताकि मेरा प्रॉफिट हो। अगर मेरा प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं क्यों इन्वेस्ट करूंगा? तो आरबीआई विल सी टू इट दैट पीपल डू नॉट सफर। तो ये जो है यील्ड मैनेजमेंट है, आरबीआई यील्ड मैनेज करता है थ्रू थिंग्स लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशन, थ्रू थिंग्स लाइक योर ऑपरेशन ट्विस्ट। ठीक है, आप चलते हैं आगे। तो ऑपरेशन ट्विस्ट, आरबीआई सेल्स ट्रेजरी बिल। सी, आपको डिफरेंस मैंने बताया था पहले, वी हैव डिस्कस्ड द गवर्नमेंट सिक्योरिटी। आज टी बिल को थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूं, ये फिर लौट के आएगा जब फाइनेंशियल मार्केट करेंगे। टी बिल क्या होता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग इंस्ट्रूमेंट है, नो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट इज गिवन बाय द गवर्नमेंट, बट यू गेट योर रिटर्न बिकॉज इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। अब आपको समझाता हूं कैसे। फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। फेस वैल्यू इज व्हाटएवर इज रिटन ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। मान लो इसकी फेस वैल्यू है टी बिल की, ये शॉर्ट टर्म होते हैं, मतलब ये आपके 91 डे, 182 डे, 364, इट इज मेनली लेस देन 1 ईयर। ठीक है, एक साल से कम को हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, एक साल से ज्यादा को हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं। तो हेयर मान लो फेस वैल्यू जो टी बिल पे जो लिखा हुआ है वो है 100 रुपीज, तो इट विल बी इशूड एट अ डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब मान लो 95 का इशू कर दिया। ठीक है, आपने देखा होगा ना जब हम जाते हैं मार्केट वगैरह तो हम बोलते हैं भैया ये तो एमआरपी है, क्या डिस्काउंट दोगे इस पे? तो हेयर सेम प्रिंसिपल अप्लाइज दैट अल्टीमेटली ट्रेजरी बिल की जो फेस वैल्यू है इट इज इशूड एट अ डिस्काउंट। यहां पे हमने 95 का मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करा। रिमेंबर दैट टी बिल्स दे आर नॉट इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट। State government are not allowed to issue T-bill, only center can. But government security, they can be issued by the union government and the state government. ये बेसिक चीज याद रखना। GSEC जो है वो center and state both can issue, but treasury bill can only be issued by central government, not the state government. ये बेसिक चीज याद रखना पीटी के पर्सपेक्टिव से। तो हेयर क्या हुआ कि आई सोच लो मैंने इन्वेस्ट करा, आई इन्वेस्टेड इन 91 डे ट्रेजरी बिल। 91 डे के बाद इसकी एक्सपायरी हो जाएगी, मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। तो आई इन्वेस्टेड 95 रुपीज एंड आई बॉट 1 ट्रेजरी बिल। नाउ आफ्टर 91 डे गवर्नमेंट विल पे मी 100 रुपीज। जो फेस वैल्यू थी वो मुझे पे कर दी जाएगी। तो मेरा बेनिफिट क्या है इसमें? 5 रुपीज। मैंने खरीदा 5 का, लेकिन जब मुझे पैसे वापस लौट, मैंने खरीदा 95 का, लेकिन जब मुझे पैसे लौटाए गए तो इट वॉज 100। तो दैट इज माई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसकी जो यील्ड आई वो क्या आई आपका? मान लो 5%। सिंप्लीफाई करके, मैथमेटिकल एग्जैक्टेशन में नहीं जा रहा हूं, ठीक है, मान लो 5% मेरी जो है इसकी रिटर्न आई। तो हियर इशूड एट डिस्काउंट बट रिटर्न, क्योंकि इट विल बी रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। इशूड एट अ डिस्काउंट, रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। अब ये हमारा क्लियर हो गया। टी बिल्स में चलते हैं।
अब रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट द रिलेशन बिटवीन बॉन्ड प्राइस, इंटरेस्ट रेट एक्सेट्रा। तो आरबीआई ने यहां सेल करा है टी बिल, तो टी बिल अब आरबीआई ने जब सेल कर दिया तो क्या होगा, डिमांड एंड द प्राइस विल डिक्लाइन। ठीक है, ये तो बेसिक डिमांड सप्लाई है कि आरबीआई ने स्टार्ट करा सेल करना टी बिल को। जो पहले चीज 100 रुपए की आ रही थी, ठीक है, अब वो इशू हुई 95 पे, और जब आरबीआई ने उसको बेचा तो ये प्राइस चला गया 80 रुपीज पे। तो नाउ व्हाट वुड हैपन, द यील्ड विल गो अप। ये तो मैं आपको बहुत ड्रास्टिक चीज बता रहा हूं, इनमें चेंज होते हैं 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपीज एक्सेट्रा। ये तो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं, मैं यहाँ सीधा 80 पे ले गया, तो इसको देख के डरना मत कि यार इसमें तो बहुत लॉस होता है, ऐसा नहीं है, लोग पैसा बनाते हैं इसमें। एनीवेज, तो यील्ड विल गो अप, ठीक है, आरबीआई सेल स्टेबल, द यील्ड विल गो अप। आरबीआई विल बाय लॉन्ग टर्म बॉन्ड। 10,000 करोड़ की मैंने टी बिल्स बेचे, टी बिल का प्राइस डाउन गया, टी बिल की यील्ड ऊपर गई। अब आरबीआई ने बाई करा 10,000 करोड़ की, जब मैंने टी बिल बेचे तो मुझे मार्केट से पैसा मिला होगा, उसी पैसे से आई विल बाई लॉन्ग टर्म बॉन्ड। जब मैंने लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीदे तो उसकी डिमांड एंड प्राइस इट विल गो अप एंड यील्ड इट विल गो डाउन। सिंपल, दिस इज व्हाट वी डिस्कस्ड अर्लियर ऑन, बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड। तो यहां पे बॉन्ड का प्राइस ऊपर चला गया, उसकी यील्ड विल डिक्लाइन। तो बेंचमार्क 10 ईयर की जो है अराउंड 6.32% है। तो दैट इज हाउ ऑपरेशन ट्विस्ट इज कैरिड आउट। ऑपरेशन ट्विस्ट में क्या कर रहे हैं आरबी, नैरोइंग द डिफरेंशियल, दैट इज दे आर फ्लैटनिंग द यील्ड कर्व। आपको मैंने समझा दिया है ग्राफ के थ्रू, दैट इज हाउ ऑपरेशन ट्विस्ट इज कैरिड आउट। नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ऑपरेशन ट्विस्ट की सिग्निफिकेंस क्या है। मेरे ख्याल से एक स्टूडेंट ने पहले पूछा था कि हमें यील्ड क्यों मैनेज करनी है। इफ आई कैन रिकलेक्ट दैट समबडी आस्क्ड दैट व्हाई वी नीड टू मैनेज यील्ड, लो यील्ड रखने का फायदा क्या है, क्योंकि लो यील्ड है तो आगे के इंटरेस्ट रेट भी इंडियन इकोनॉमी में जो है लो, अगर यील्ड लो रहेगी तो इंटरेस्ट रेट भी इंडियन इकोनॉमी में लो जाएंगे। तो हियर इफ लॉन्ग टर्म यील्ड गो डाउन गवर्नमेंट विल बोरो चीपर, क्योंकि गवर्नमेंट ने जैसे बोला कि वी विल बी बोरोइंग 12 लाख करोड़ रुपीज, 7 लाख करोड़ रुपीज, ठीक है, तो ये जो गवर्नमेंट ने बोरो करना होता है ये एक ही बार में नहीं होता कि 1 अप्रैल को जो है गवर्नमेंट गई मार्केट में और 12 लाख करोड़ रुपए बोरो कर दी। ट्रांचेस में, ठीक है, सेगमेंट्स में बोरो करते हैं, आज दो, अगले 3 महीने बाद फिर दो, फिर दो, फिर दो, ऐसे करके, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट जब नए बॉन्ड इशू करेगी और यील्ड अगर हाई है तो नया बॉन्ड आपको या तो उसके बराबर या उससे ऊपर देना पड़ेगा, नहीं तो लोग क्या कहेंगे कि यार इतना तो मुझे वैसे ही मिल रहा है तो मैं नए वाले बॉन्ड क्यों खरीदूं। तो आपको मोटिवेट करने के लिए उन्हें यील्ड थोड़ी बढ़ानी पड़ती, या और फिर साथ में कॉर्पोरेट बॉन्ड की भी यील्ड बढ़ जाएगी। तो व्हेन लोअर इंटरेस्ट रेट इन एन इकोनॉमी, तो प्राइवेट सेक्टर बोरो करेगा ऑब्वियसली, यही समझाया था आपको। व्हेन इंटरेस्ट रेट गो डाउन देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर गोज अप, कैपिटल फॉर्मेशन विल बी देयर। व्हाट इज कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दैट इज इन्वेस्टमेंट इन प्लांट, टूल, मशीनरी और लॉन्ग टर्म एसेट्स, इनके अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। एंड इकोनॉमिक सर्वे हैज रिकमेंडेड दैट इफ वी नीड जॉब, इफ वी नीड ग्रोथ, अभी इंडिया में क्या प्रॉब्लम है, जॉबलेस ग्रोथ की। सो इफ वी नीड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इफ वी नीड इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडियन इकोनॉमी, देन वी नीड टू मोटिवेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगी इससे, ऑपरेशन ट्विस्ट। देन ईजिंग द लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट, जो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट रेट है अगर वो डाउन जाएंगे तो कार लोन, होम लोन, इनकी जो ईएमआई है वो डाउन जाएगी। तो ऑटोमेटिकली व्हाट विल द रिटेलर्स लाइक यू एंड मी और द हाउस होल्ड्स लाइक यू एंड मी डू, वी विल borrow and we will start consumption expenditure. So investment expenditure होगा, consumption expenditure होगा और government की borrowing will become cheaper. These are all the benefits of operation twist, or you can say these are all the benefits of lower yields or lower interest rates in the Indian economy. Next आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की, CRR. What is CRR? CRR is the average cash balance which the banks are required to maintain with RBI. 4% of NDTL. मतलब डायग्राम के थ्रू समझाता हूं, इंडिविजुअल डिपॉजिट्स 1000 रुपीज इन द बैंक, इंडिविजुअल ने 1000 रुपीज डिपॉजिट करे बैंक के अंदर, आप CRR मान लो 4% पे है, 4% इज द CRR। तो बैंक क्या करेगा कि 1000 में से 960
अपने पास रखेगा एज अ बैलेंस, एंड 40 रुपीज इन कैश फॉर्म विल बी डिपॉजिटेड टू आरबीआई. सो दैट इज व्हाट इज सीआरआर. दैट इज बैंक्स will keep some percentage of their deposit with in cash form with RBI. अब आपको समझा देता हूं NDTL. यहां पे याद रखना टोटल डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही है, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज की बात हो रही है. डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज मैं आपको पहले समझा चुका हूं. डिमांड कौन से होते हैं हमारे, करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट. टाइम लाइबिलिटी कौन सी होती है हमारे, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट. दीज आर माई टाइम डिपॉजिट्स. नाउ from these demand and time liabilities you will deduct the deposits with other banks. That is the formula for NDTL. NDTL के डेप्थ में नहीं जाना है, बहुत ही बेसिक सा सवाल आएगा, अगर आएगा तो इसकी डेप्थ में नहीं जाना है, इसका PhD करने नहीं जाना है. there is no use. So NDTL is when you from the demand and time liabilities you will deduct the deposits with other bank. क्योंकि SBI है, उनके पास एक्सेस फंडिंग थी, उन्होंने जो है PNB में कुछ पैसा जमा करा दिया, उन्होंने जो है पैसा जमा करा दिया किसी और बैंक के अंदर, HDFC में पैसा जमा करा दिया, तो वो क्या बन गया आपका एसेट. यहाँ पे बात हो रही है हमारी लाइबिलिटीज की. तो हमने लाइबिलिटीज में से हमें चाहिए नेट लाइबिलिटी. नेट माइनस ये है यहाँ पे हमारा ग्रॉस एक तरीके से, ठीक है. तो हमने इसमें से अपने इंटर बैंक डिपॉजिट या डिपॉजिट विद अदर बैंक उनको हमने हटा दिया, तो हमें मिल गया हमारा नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी. एनीवेज अब आगे चलते हैं. बैंक को जो है कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है, दैट इज द बोन ऑफ कंटेंशन हियर. इसके ऊपर पहले कमेटियां भी बैठ चुकी हैं और उन्होंने बोला था कि जो सीआरआर की फंडिंग है वो बैंक्स को आप इन्वेस्ट करने दो कहीं पे, जिससे कि उनको इंटरेस्ट मिलता रहे. लेकिन आरबीआई रिफ्यूज्ड. बेसिक सी बात है, व्हाई डू वी नीड सीआरआर और एसएलआर? रिमेंबर वी टॉक्ड अबाउट आरडीआर, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो. क्या बात करी थी हमने कि वी need reserves. RBI mandates the banks to keep reserves because such reserve will provide a safe cushion to the banking sector. कि अगर बहुत सारे डिपॉजिटर्स एक ही दिन के अंदर आ गए कि मेरा पैसा दो मेरा पैसा दो, बैंक will have sufficient liquidity, बैंक will have sufficient funding to return their money. और अगर वो पैसा नहीं दे पाते और उनके रिजर्व बहुत कम थे और खत्म हो गए, तो हम उसको टेक्निकली बोलते हैं bank run. That is the bank they run out of their reserves. Banks they cannot give money to their depositors. That is what is a bank run. ये बैंक रन हुए थे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम में. नॉर्दर्न रॉक एक बैंक था यूके के अंदर, और उस बैंक के बाहर 1-1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगती थी. देयर वर क्यूज, पीपल केम विद देयर यू कैन से बिग बैग्स, ठीक है, और ट्रैवलिंग बैग्स वगैरह लेके आते थे, अटैचियां बड़ी बड़ी लेके आते थे और उनके अंदर पैसा लेके जाते थे, और वेटिंग चलती थी पूरे पूरे दिन की. वो फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड को कॉल करेगा और उसके बाद जो है पैसा मिलेगा. वहां बैंक रन हो गया था, लोगों का भरोसा उठ गया था कि यार ये पैसे लौटा पाएंगे या नहीं लौटा पाएंगे. अल्टीमेटली उसको नॉर्दर्न रॉक को फिर नेशनलाइज कर दिया गया, क्योंकि सारी की सारी फंडिंग तो बैंक ऑफ इंग्लैंड ने दी थी. उन्होंने कहा था कि अब हम ही आपको टेक ओवर कर रहे हैं. एनीवेज आगे चलते हैं. इसको यूज कैसे करेंगे? इन्फ्लेशन जब हो रही है, व्हेन इन्फ्लेशन इज देयर, व्हाट डू? आई विल रिड्यूस डिमांड इन इकोनॉमी. डिमांड कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा. तो व्हेन आई इंक्रीज सीआरआर, मान लो यहाँ पे सीआरआर 4% है, अगर मैं सीआरआर कर दूं 20%, तो हर 100 रुपए जो डिपॉजिट हो रहे हैं बैंक के अंदर, द बैंक विल हैव टू कीप 20 रुपीज असाइड. नाउ दे आर ओनली कीपिंग 4 रुपीज असाइड. In this scenario, they will be keeping 20 rupees aside. तो इससे क्या प्रॉब्लम आएगी? They will be reducing their lending capacity. So money supply will go down in economy. तो इससे क्या होगा? Money supply will be low. जब money supply low होगी तो automatically demand will come down. Money supply कम होगी तो interest rate भी बढ़ाए जाएंगे. Demand will come down. When demand comes down, then inflation will be lower. ये मैं आपको समझा चुका हूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन में. कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी में वही प्रिंसिपल है, वही चलता रहेगा. ठीक है. अब इसके बाद स्लो डाउन. इफ देयर इज अ स्लो डाउन इन इंडियन इकोनॉमी, व्हाट इज स्लो डाउन? स्लो डाउन इज व्हेन इकोनॉमिक एक्टिविटी रिड्यूसेस, व्हेन डिमांड इन द इकोनॉमी रिड्यूसेस. ड्यूरिंग दिस आई हैव टू गो फॉर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, cheap money policy, loose money policy. So here when there is slowdown, I will reduce the CRR, cash reserve ratio को reduce कर दूंगा. मान लो पहले मैं 20% पे था CRR, अब मैं उसको ले आया 2%.
तो बैंक अर्लियर ओनली कुड गिव 80 रुपीज लोन, नाउ दे कैन गिव 98 रुपीज एज लोन. तो मनी सप्लाई विल गो अप, इंटरेस्ट रेट्स विल गो डाउन. ठीक है, मनी सप्लाई विल गो अप, इंटरेस्ट रेट्स दे विल गो डाउन, क्योंकि मोर फंडिंग इज अवेलेबल फॉर द बैंकिंग सेक्टर टू लेंड. तो पैसा बढ़ गया है तो मैं अब लोन की दरें कम कर सकता हूं, क्योंकि वी आर फ्लश विद फंडिंग एंड वी नीड टू लेंड. इससे और रिटर्न जनरेट होगा. ठीक है, तो मनी सप्लाई विल बी हाई, इंटरेस्ट रेट विल बी लो. इससे क्या होगा, पीपल लाइक यू एंड मी वी विल बोरो, corporates they will borrow, so automatically there will be growth in economy. That is how expansionary monetary policy works. Anyways, इसका करंट अफेयर्स देख लेते हैं थोड़ा सा. ये करंट अफेयर नहीं, पहले का है सीआरआर करंट अफेयर्स. तो मैंने आपको इसका इकोनॉमिक्स सर्वे में बता दिया है. अभी लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है उसको भी डिस्कस करूंगा. तो पहले 8.5% पे था ये अगस्त 2008 में, उसके बाद 6% में कर दिया. क्यों कर दिया गया था? बिकॉज ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस. व्हाट वाज ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस? ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अंदर इन इंडियन इकोनॉमी वी हैड अ स्लो डाउन. याद रखना, तब रिसेशन नहीं आया था. देयर वाज ग्लोबल रिसेशन, देयर वाज रिसेशन इन द वेस्ट, इन द डेवलप्ड वेस्ट, यूरोप में, यूके में, यूएसए वगैरह में, वहां रिसेशन था. लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ स्लो डाउन आया था. ठीक है, ये बेसिक चीज याद रखना. So here we reduce CRR so that more money is injected. Slow down, CRR reduced, money supply goes up, demand goes up, and there will be growth. So at this point in time, India was experiencing a slowdown. When we reduced CRR, more money was released, because of which demand was created and because of which Indian economy experienced growth. That is how this policy works. अब चलते हैं आगे. थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं आप सीआरआर के लिए, क्योंकि दीस डेज देयर इज अ टिल्ट टुवर्ड्स फैक्चुअल क्वेश्चंस. तो सीआरआर के जो प्रोविजन है, सीआरआर बढ़ाने घटाने की या सीआरआर को इंपोज करने की पावर कहां से आती है? इट इज बेस्ड ऑन द प्रोविजंस ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. ये बेसिक फैक्ट याद रखना है. ठीक है, देन सिंस 2006 आरबीआई प्रिस्क्राइब सीआरआर विदाउट एनी फ्लोर और सीलिंग. पहले फ्लोर और सीलिंग थे, फ्लोर ऑफ 3%, सीलिंग ऑफ 20%. न्यूमेरिक इसकी जानबूझ के मैंने काटा है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है. फ्लोर क्या होता है? फ्लोर रेट, जिसमें मैं जैसे फ्लोर पे खड़ा हूं, मतलब फ्लोर से नीचे नहीं जा सकते, मतलब 3% से नीचे नहीं करोगे आप. सीलिंग क्या होती है? छत, मतलब 20% से ऊपर नहीं बढ़ाओगे आप. लेकिन नाउ सिंस 2006 देयर इज नो फ्लोर एंड सीलिंग व्हेन आरबीआई इज इंपोजिंग सीआरआर, व्हेन आरबीआई इज डिसाइडिंग सीआरआर. अब देख लेते हैं ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स. हु आर स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स? स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स आर दोज व्हिच आर लिस्टेड इन द सेकंड शेड्यूल. ये अभी आपका आएगा जब हम बैंकिंग डिस्कस करेंगे. यहां पे सिर्फ ओवरव्यू है. सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934. सेकंड शेड्यूल जो सेकंड शेड्यूल है आरबीआई एक्ट 1934 का, उसमें जो भी लिस्टेड बैंक है उन्हें हम स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं. तो एससीबीज जो है स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, दे हैव टू कीप सीआरआर, बट आरबीआई चाहे तो दे कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीआरआर फॉर रीजनल रूरल बैंक एंड कोऑपरेटिव. स्मॉल फाइनेंस बैंक जो अब नई ब्रीड आई है, स्मॉल फाइन डिफरेंशिएटेड बैंक जिसे हम बोलते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, पेमेंट्स बैंक है, दे विल बी कीपिंग सीआरआर. तो अगर व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स इन एनी सब्जेक्ट, ट्राई टू कम अप विद दीज काइंड ऑफ नोट्स, दैट इज कि एक ही जगह पे मुझे मिल जाए सारा का सारा कि भाई कौन कौन से इंस्टीट्यूट रख रहा है सीआरआर, कौन कौन सा नहीं रख रहा है. तो फिर क्या होता है, कुछ कहीं पड़ा कुछ कहीं पड़ा, तो कंसोलिडेशन में प्रॉब्लम आती है. तो दैट इज हाउ यू शुड मेक योर नोट्स. वहीं पे साइड में जहां पे करंट अफेयर्स मैगजीन कोई पढ़ रहे हो, जहां पे आपकी पीडीएफ है, जो भी आपका सपोर्ट मटेरियल है, जहां पढ़ दो वहीं पे लिखते चले जाओ. कंसोलिडेशन साइड बाय साइड करते रहो. न्यूज़पेपर में कोई फैक्ट आया, वहीं के वहीं मैंने अपने साथ में नोट्स में लिख दिया. दैट इज हाउ यू शुड प्रोसीड फर्दर. एनीवेज, एनबीएफसीज जो हैं उनको सीआरआर नहीं करना. नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, उनको सीआरआर नहीं रखना. तो शेड्यूल कमर्शियल बैंक को रखना है, आरआरबी को रखना है, कोऑपरेटिव बैंक्स को रखना है, स्मॉल फाइनेंस बैंक को रखना है, पेमेंट बैंक्स को भी रखना है. बट एनबीएफसीज दे आर आउट ऑफ द परव्यू ऑफ सीआरआर. अगर सीआरआर डिफॉल्ट है, मतलब मेरे को 4 रुपीज रखने थे आरबीआई के पास, इफ आई एम नॉट एबल टू कीप माई एवरेज बैलेंस मेंटेन्ड, that is 4 rupees I am not able to maintain with RBI, then I will be charged a penal rate, an interest rate that is 3% above the prevailing bank rate. prevailing bank rate है around 4.25%. ठीक है, तो 7.25% मुझे ब्याज देना होगा RBI. That is how
ये बैंक रेट क्या है ये अभी आपको बता दूंगा। एनीवेज आगे चलते हैं। कुछ करंट देख लेते हैं हम सीआरआर का। डीमोनेटाइजेशन जब हुई थी तो एकदम से क्या हुआ था, सभी लोगों ने पैसा उठाया अपना और बैंक की तरफ चले गए, बिकॉज वी हैड टू इन अ टाइम बाउंड मैनर वी हैड टू डिपॉजिट द मनी, द ओल्ड नोट्स एंड टेक आउट द न्यू नोट्स। सो ऑटोमेटिकली बैंकों के पास क्या होगा, डिपॉजिट्स दे विल बी गोइंग आउट ऑफ द रूफ, डिपॉजिट्स विल इंक्रीज। और उस समय क्या खतरा होता है, बैंक क्या करेगा, मैंने उसे 100 रुपए दिया लेकिन बैंक उस 100 का 200 300 400 बना सकते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, जो हमने डिस्कस करा था येस्टरडे। ठीक है, इन अ फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग सिस्टम द बैंक्स दे कैन गो फॉर क्रेडिट क्रिएशन, क्योंकि सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट हैज टू बी केप्ट एज रिजर्व, रेस्ट एवरीथिंग कैन बी गिवन एज लोन। तो इस टाइम में आरबीआई ने क्या करा, इंक्रीमेंटल सीआरआर ऑफ 100% फ्रॉम 26 नवंबर 2016। 26 नवंबर 2016 के बाद जितने भी आपके डिपॉजिट आए सारे के सारे सीआरआर में लॉक हो जाएंगे, मतलब विद आरबीआई यू कैन नॉट क्रिएट क्रेडिट इन इकोनॉमी। नहीं तो क्या होता है, इन्फ्लेशन हो जाती, बहुत ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाती, बहुत ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन हो जाता, तो उससे इन्फ्लेशन हो जाती। वो पहले ही आरबीआई ने एंटीसिपेट करा और बोल दिया कि जितना भी पैसा आएगा, डिपॉजिट आएंगे, जितने भी डीमोनेटाइजेशन के बाद जितने भी डिपॉजिट आएंगे, इंक्रीमेंटल सीआरआर, मतलब सीधा सीआरआर के अंदर मुझे दे देना, अपने पास मत रखना। देन सीआरआर एग्जेम्पशन February 2020, ये था हमारा जब स्लो डाउन चल रहा था इंडियन इकोनॉमी में, कोविड से पहले ही वी वर इन स्लो डाउन। ये हमारी इकोनॉमी के साथ एक प्रॉब्लम हुई है कि हम पहले ही वीक थे, फिर कोविड ने आके बहुत वीक कर दिया। एनीवेज सीआरआर की एग्जेम्पशन थी कि इफ यू आर गिविंग, यू विल नॉट बी नीडेड टू मेक सीआरआर if you are giving loans to certain segments, that is automobile, residential housing and MSME। मतलब कि 100 रुपीज मेरे पास डिपॉजिट आया, उसमें से मान लो आई हैव टू कीप 4% विद आरबीआई एस सीआरआर, बट इफ दिस 100 रुपीज इज गिवन एज लोन टू MSME, टू रेजिडेंशियल हाउसिंग और टू द ऑटोमोबाइल सेक्टर, देन आई डोंट नीड टू कीप सीआरआर। और याद करो सीआरआर नो इंटरेस्ट इनकम। सो बैंक क्या करेंगे कि अगर वो लोन देंगे तो इंटरेस्ट इनकम होगी, लेकिन सीआरआर रखेंगे तो इंटरेस्ट इनकम नहीं होगी। तो इससे क्या होगा, आरबीआई इज ट्राइंग टू स्टिमुलेट लोन्स टुवर्ड्स दी सेक्टर। इन सेक्टर में मोटिवेट कर रहा है बैंक को कि आप इन सेक्टर के अंदर लोन दो। दैट इज इफ यू गेट डिपॉजिट you have to give me CRR, but if you get deposit and you give loan to automobile, housing and MSME, then you don't need to give me a CRR। तो बैंक क्या करेंगे, दबा के लोन देंगे, उससे क्या होगा, इन सेक्टर में डिमांड क्रिएट होगी, ऑटोमेटिकली देयर विल बी ग्रोथ। देन एमपीसी ने February 2021, तो ये मैं करंट अफेयर यहाँ पे इंटीग्रेट कर दिए हैं और जो बाकी करंट अफेयर्स हैं वो भी आते रहेंगे। तो एमपीसी की जो मीटिंग हुई है February 2021 में, रिस्टोर कर दिया है सीआरआर को। रिमेंबर सीआरआर को 4% से 3% पे करा गया था बिकॉज ऑफ कोविड। इसकी वजह से वी हैड 1.37 लाख करोड़ रुपीज 1.37 लाख करोड़ रुपीज ऑफ लिक्विडिटी इंजेक्टेड इनटू द इकोनॉमी। बट जब जरूरत नहीं हो तो लिक्विडिटी को वापस एब्जॉर्ब करना पड़ता है। तो आरबीआई ने क्या करा, रिस्टोर सीआरआर टू 4%। फेजेस में करा है, पहले 3.5%, फिर 4%, मई 22, 2021। सो अब वापस आपका जो सीआरआर है वो वापस 4% पे आ चुका है। सो दैट इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी वाज कंडक्टेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ सीआरआर। अब ये क्वेश्चन देख लेते हैं। ये सीडीएस क्वेश्चन है 2020 का। कैश रिजर्व रेशियो रेफर्स टू शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज लिक्विड एसेट। बैंक्स हैव टू होल्ड, ये तो रॉन्ग है। शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंसेस विद आरबीआई। बैलेंसेस मतलब कैश विद आरबीआई, तो ये राइट लग रहा है। शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट बैंक्स हैव टू होल्ड एज पार्ट ऑफ देयर कैश रिजर्व, उनके जो कैश रिजर्व है, नहीं होगा क्योंकि ये पैसा आरबीआई के पास जाता है। रेशियो ऑफ कैश होल्डिंग टू रिजर्व ऑफ बैंक, ये तो कुछ नॉन सेंसिकल स्टेटमेंट है। तो बी विल बी द आंसर, दैट इज शेयर ऑफ एनडीटीएल दैट द बैंक्स हैव टू होल्ड एज बैलेंसेस विद आरबीआई। So B will be the answer
share of NDTL that banks have to hold as balances with RBI. अब SLR की बात करते हैं. SLR statutory liquidity ratio 18% of NDTL the bank is required to maintain in safe and liquid assets. अब वो कौन कौन से assets हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स, कैश, गोल्ड और एनी सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय आरबीआई. ठीक है, मेंटेन्ड विद द बैंक इटसेल्फ, बैंक अर्न इंटरेस्ट इनकम. ठीक है, तो एसएलआर क्या है? सीआरआर में यू हैड टू कीप 4% in cash form with RBI, but in statutory liquidity ratio, you have to keep 18% of NDTL with yourself. But कैसे रखना है, किस फॉर्म में रखना है, that will be decided by RBI among many factors. So RBI ने अभी क्या बोला है, किस फॉर्म में रख सकते हैं? It could be dated government security. Dated government security मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, G6 जिसे हम बोलते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जिसे हम बोलते हैं. एंड ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बिल जो शॉर्ट टर्म वाला भी आपको बताया था, 91 डे, 182 डे, 364 डेज. तो दीज आर द ट्रेजरी बिल. तो यू कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यू कैन इन्वेस्ट इन ट्रेजरी बिल, यू कैन इन्वेस्ट इन स्टेट डेवलपमेंट लोन. याद करना कि जो स्टेट गवर्नमेंट की जो G-SEC होती है उसको स्टेट डेवलपमेंट लोन बोला जाता है टेक्निकली. ठीक है, so you can invest in central government G-SEC, you can invest in state government G-SEC, you can keep cash आप रखोगे नहीं because cash means no interest. गोल्ड में आप रखोगे लेकिन गोल्ड रिस्की है, कभी ऊपर कभी नीचे. रिलेटिवली गवर्नमेंट सिक्योरिटी वो जो है लिक्विड भी होती हैं और सेफ भी होती है. एनीवेज आरबीआई मेंटेन्ड, दीज आर मेंटेन्ड विद द बैंक इटसेल्फ. बैंक को अपने पास रखना, दैट इज डिपॉजिटर गया 1000 रुपए लेके बैंक के पास, प्रिज्यूमेबली मान लो अगर 20% है आपका एसएलआर, तो 800 रुपए, 800 रुपीज विल बी केप्ट बाय द बैंक विद इटसेल्फ इन द स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड 800 विल बी केप्ट विद देमसेल्फ, जिसका कि वो आगे कुछ भी करें, लोन देना है लोन दे. 200 विल बी इन्वेस्टेड इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल, स्टेट डेवलपमेंट लोन, कैश, गोल्ड और एनी अदर सिक्योरिटी नोटिफाइड बाय आरबीआई. अब इसको देख लेते हैं कि इसका यूसेज कैसे होता है. एप्लीकेशन पार्ट देख लेते हैं. एसएलआर अगर हाई है, अगर इन्फ्लेशन है, व्हाट इज इन्फ्लेशन? दैट इज सस्टेन्ड इंक्रीज इन प्राइस लेवल. इन्फ्लेशन के टाइम में आई वुड लाइक टू रिड्यूस डिमांड इन इकोनॉमी. तो हियर इफ इन्फ्लेशन इज देयर, दैट इज मोर मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स. डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, यानी सप्लाई बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ गई है, और गुड्स एंड सर्विस की जो सप्लाई है वो कम है. तो एट दिस पॉइंट इन टाइम व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, दैट इज डिमांड इज मोर एंड सप्लाई इज लेस, देन आई विल ट्राई टू रिड्यूस द डिमांड. सो एसएलआर विल बी इंक्रीज्ड. एसएलआर को इंक्रीज कर दूंगा. मान लो पहले 10% था, नाउ मैं उसको 20% कर दूंगा. रिमेंबर द लिंकेज विद रिजर्व डिपॉजिट रेशियो एंड द मनी सप्लाई. तो हियर मनी सप्लाई विल गो डाउन, क्योंकि एसएलआर के अंदर जो पैसा जाता है वो पार्ट नहीं होगा आपकी मनी सप्लाई का. तो मनी सप्लाई विल गो डाउन, बिकॉज ऑफ विच योर इंटरेस्ट रेट विल गो अप. पहले मेरे पास जो है 90 रुपीज थे लेंड करने के लिए. जब एसएलआर 10% में था तो मैं 90 रुपीज लेंड कर सकता था, लेकिन नाउ एसएलआर इज एट 20, दैट मीन्स आई कैन ओनली लेंड 80 रुपीज, बट आई हैव टू मेक प्रॉफिट. तो आई विल इंक्रीज द इंटरेस्ट रेट. मैं इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दूंगा. सो मनी सप्लाई डाउन जाएगी, इंटरेस्ट रेट अप जाएगा. तो इससे क्या होगा? People will have less money available. As the cost of borrowing increases, people will not be taking loans. Companies will not be taking loans. So demand will decrease in the economy and inflation will be low. This is the contractionary monetary policy. On the other hand, if there is a slowdown in economy, अगर slowdown है economy में, if there is a slowdown in economy, that means demand is less, economic activity is less. So at this point in time, what I need to do if I am RBI, I need to increase demand in economy. So what will be happening now? I will be reducing SLR. मैंने SLR को reduce कर दिया. Because of this, more money will be free. पहले SLR था 20, तो सिर्फ 80 रुपीज लैंड हो पा रहे थे. अब SLR है मान लो 10, तो 90 रुपीज लैंड होंगे. तो मोर मनी इज अवेलेबल इन द इकोनॉमी. तो बैंकों के पास पहले कम पैसा था, अब पैसा ज्यादा हो गया, तो वो इंटरेस्ट रेट भी रिड्यूस कर देंगे. So money supply is increasing, interest rates are decreasing. So what will happen? Loans will become cheaper, people will borrow and
consumption expenditure will go high, corporates will borrow and investment expenditure will go high. तो डिमांड क्रिएट होगी जब लोग होम लोन लेंगे, गाड़ियां लेंगे, और जो कॉर्पोरेट्स हैं वो रॉ मटेरियल खरीदेंगे और लोगों को नौकरी पे रखेंगे, तो उससे क्या होगा, देयर विल बी डिमांड इन द इकोनॉमी, तो देयर विल बी ग्रोथ. और ये क्या है, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी. दैट इज हाउ SLR वर्क्स. तो इकोनॉमिक सर्वे 2020 SLR has been reduced by 25 basis point in 4 steps in 2020. 18.25. और जो इकोनॉमिक सर्वे आपको मैंने ग्राफ दिखाया था ऑफ 2021, करंटली ये है अराउंड 18% पे. तो धीरे धीरे RBI भी SLR को कम कर रहा है. पहले एक कमेटी रिकमेंडेशन आई थी बहुत पहले, नरसिम्हम कमेटी, वो हम डिस्कस करेंगे जब हम बैंकिंग पे जाएंगे. तो उसकी रिकमेंडेशन थी कि इन अ फेस्ड मैनर SLR शुड बी रिड्यूस्ड, CRR शुड बी रिड्यूस्ड. तो वो इंप्लीमेंट हुई थी तब, और आज तक इंप्लीमेंट हो रही हैं कमेटी के रिकमेंडेशंस. एनीवेज आगे चलते हैं. नाउ फैक्ट क्विज में SLR is maintained under Banking Regulation Act 1949. Remember CRR, the power to impose CRR, or CRR was backed by RBI Act 1934, but SLR here is backed by Banking Regulation Act 1949. So RBI is the authority to increase SLR to maximum of 40%. बट कोई फ्लोर रेट नहीं है, मतलब सीलिंग है 40% की. देर इज अ सीलिंग बट फ्लोर रेट नहीं है, जीरो भी कर सकते हैं. ठीक है, अब चलते हैं आगे. ऑल स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक that is listed in second schedule of RBI Act 1934, they have to keep SLR, but दूसरे norms, separate norms can be made for regional rural bank and cooperative banks, and the small finance bank and the payment bank, they have to keep SLR. तो scheduled commercial banks के अंदर आपके public sector, private sector, ठीक है, आपके foreign banks, ये सब आ जाते हैं. ये मत सोचना कि foreign banks को नहीं करना हो. your private bank, your public bank, your foreign banks, they all are scheduled commercial bank. So they will have to follow RBI rules, and RBI rule is SLR. So they have to keep this. Now आपके SF, आपका scheduled commercial bank रख रहे हैं, then your regional rural bank रख रहे हैं, cooperative banks रख रहे हैं, small finance bank रख रहे हैं, and payment banks भी रख रहे हैं, and NBFC. A specific type of NBFC, they will be keeping SLR of 15%. ये टर्म जो है ये चेंज होती रहती है. RBI अपने जो है हिसाब से इसको चेंज करते रहते हैं, तो ये चीज याद रखना. डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFC, जो NBFCs हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल क्राइसिस, सॉरी, अब तो इनका क्राइसिस बहुत सारे हो गए NBFC के, तो इनके नाम के आगे क्राइसिस ही लग गया है. एनीवेज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज NBFCs, ठीक है, इनमें से कुछ डिपॉजिट टेकिंग होती है, इनमें से कुछ नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है. डिपॉजिट टेकिंग मतलब ये पब्लिक यहाँ पे जाके, जैसे हम बैंकों में भी ओपन आवर सेविंग्स अकाउंट एक्सेट्रा, यहाँ पे जाके पब्लिक अपने पैसे जमा करा सकती है, दे कैन मेक डिपॉजिट्स. बट नॉन डिपॉजिट टेकिंग मतलब वहाँ पे जाके वो और काम करते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में काम करेंगे, ठीक है, या किसी और आपके इंश्योरेंस वगैरह में काम करेंगे, ठीक है बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है. इनको हम शैडो बैंक्स भी बोलते हैं. एनीवेज वो बाद में जाएंगे हम, क्योंकि वो अलग टॉपिक है. तो नॉन डिपॉजिट टेकिंग जो है वो डिपॉजिट नहीं लेंगे. तो जो डिपॉजिट टेकिंग है उनको SLR मेंटेन करना है. ये बेसिक फैक्ट हमें याद रखना है. डिपॉजिट एक्सेप्टिंग NBFCs, दे हैव टू कीप SLR. SLR का अगर डिफॉल्ट है, मतलब आपको यू हैव टू कीप 18% विद योरसेल्फ इन द स्पेसिफाइड फॉर्म, बट इफ यू आर नॉट एबल टू कीप SLR, देन यू विल बी चार्ज अ penal rate, that is 3% per annum above the bank rate. बैंक रेट अभी है 4.25%. ये बेसिक चीजें हमें याद रखनी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. एनीवेज, तो क्लास को अभी एंड करते हैं. यहाँ पे देख लेता हूं SLR में कुछ बचा है क्या, या SLR का एक क्वेश्चन है, इसको और देख लेते हैं. ये आया है प्रीलिम्स 2015 में. व्हेन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिड्यूसेस स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट, SLR को रिड्यूस करा गया है. SLR has been reduced by 50 basis point, which of the following is likely to happen. ठीक है, India's GDP growth rate increases drastically. ड्रास्टिकली मतलब 5% पे था, 12%, 15%, 20% पे चला गया. तो ड्रास्टिकली जब वर्ड ऐसे आ जाए ना, तो यू हैव टू बी कॉशियस.
बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड आ जाए तो थोड़ा सा आपको कॉशियस हो जाना चाहिए कि यार ड्रास्टिकली, मतलब ड्रास्टिकली बहुत एकदम तेजी से बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो वो तो मुश्किल है, क्योंकि अब ये SLR आपने देखा इकोनॉमिक सर्वे में कि SLR रिड्यूस कर रहा है RBI, एक मतलब 100 बेसिस पॉइंट से रिड्यूस कर चुका है, फिर भी ड्रास्टिकली तो छोड़ो, हम रिसेशन में चले गए थे, ठीक है। एनीवेज आगे चलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में ब्रिंग मोर कैपिटल इन योर इकोनॉमी। वैसे तो इसको हम डील लिंक कर सकते हैं, अगर मैं बहुत डेप्थ में जाऊंगा तो मैं इसको लिंक कर दूंगा, लेकिन इसको अभी के लिए हम रख लेते हैं, ठीक है। ये वैसे ना है इसकी, लेकिन अभी के लिए रख लेते हैं, ऐसे ही पेपर सॉल्व करना, मैं पेपर सॉल्व कर रहा हूं आपके लिए आपके हिसाब से, इसलिए इसको भी रख रहा हूं, नहीं तो मैं सीधा इस पर काटा मार देता। शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स दे मे कट देयर लेंडिंग रेट, यस दिस कैन हैपन, कि भाई पहले आई हैड लेस मनी फॉर लेंडिंग, नाउ आई हैव मोर मनी फॉर लेंडिंग, क्योंकि SLR कम कर दिया है। रिमेंबर पिछले पेज में हमने डिस्कस करा है कि जब SLR रिड्यूस होगा बैंक्स विल हैव मोर मनी टू लेंड, सो दे माइट रिड्यूस देयर लेंडिंग रेट, so this can happen, this seems right, it may drastically reduce the liquidity to the banking system। see SLR जब रिड्यूस होगा तो लिक्विडिटी बढ़ेगी, लिक्विडिटी बढ़ेगी, क्योंकि बैंक को पैसा अब अपने पास नहीं रखना है, बैंक अब वो पैसा स्पेंड कर सकता है, तो बैंक की जो लिक्विडिटी है वो पहले लॉक्ड थी ये बैंक के पास, लेकिन लॉक था, यू कैन नॉट स्पेंड, अगर आपने SLR मेंटेन नहीं करा तो देन यू विल बी चार्ज अ पीनल रेट 3% अबव द प्रिवेलिंग बैंक रेट। So if SLR is reduced, then the bank के जो fund थे which were locked, now they become unlocked. So liquidity with the banking system, liquidity in the economy, or you can say money supply in the economy, it will increase. ये statement wrong है, तो कौन सा रह गया फिर statement C, scheduled commercial bank, यहाँ पे may लिखा हुआ, may cut their lending rate। अब चलते हैं आगे, so the answer will be C, that is scheduled commercial bank may cut their lending rate। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट बार हम जो है क्लास में देखेंगे लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।